Hello students, this is Parul Kalia, and in this video we will discuss your next chapter, retirement of a partner. And in this video I will explain you how to calculate new profit sharing ratio and gaining ratio, and what is the accounting treatment of goodwill. A partner has the right to retire from the firm after giving due notice in advance. Old partnership comes to an end after the retirement of a partner, but the firm continue and a new partnership come into existence between the remaining partner. मीन्स कोई भी पार्टनर एक शॉर्ट नोटिस देने के बाद फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है. आफ्टर दैट ओल्ड पार्टनर्स के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है वो इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि जो प्रॉफिट पहले 3 पार्टनर्स में डिवाइड होता था, नाउ इट विल बी डिवाइड अमंग द 2 पार्टनर. तो यू हैव नीड टू कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. What is the means of retirement of a partner? When one or more partners leave the firm and the remaining partners continue to do the business of the firm, it is known as retirement of the partner. Some adjustment needed at the time of retirement of a partner, and the first is you have to calculate new profit sharing ratio and gaining ratio, accounting treatment of goodwill, and the third is accounting treatment of accumulated profit and reserve, accounting treatment of revaluation of assets and reassessment of liabilities. The next is payment to the retiring partner, and the last but not least adjustment of capital account. मीन्स जब पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है फर्म से तो आप उससे गुडविल में उसका शेयर दोगे, शेयर इन रिजर्व कोई प्रॉफिट है तो उसमें उसको उसका शेयर दोगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ उसमें अगर प्रॉफिट और लॉसेस है उसमें आप उसका शेयर दोगे. तो टोटल अमाउंट आप उससे पेमेंट करोगे. अगर आपने टोटल अमाउंट उससे पेमेंट कर दिया है तो आप उसकी एंट्री कर दोगे, और अगर अमाउंट ड्यू है तो द सेम अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट. To calculate new profit sharing ratio. On retirement of a partner, his existing share is taken up by the continued partners so they can gain their old ratio of profit. कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है तो उसका शेयर कौन ले लेगा? जो पार्टनर रह गए हैं, कंटिन्यू पार्टनर जो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उनका शेयर इंक्रीज हो जाएगा. दैट्स वाई यू हैव टू नीड to calculate new profit sharing ratio. And how to calculate new profit sharing ratio? Old share plus acquired share from retiring partner. And the next is gaining ratio. When a partner retire or die, his share of profit is taken over by the remaining partner in gaining ratio. Okay, and how to calculate gaining ratio? New ratio minus old ratio. The ratio in which the remaining partner's share increase, this is known as gaining ratio. Gaining ratio is the ratio in which the remaining partners will pay the amount of goodwill to the retiring partner. किसी भी पार्टनर के रिटायरमेंट या डेथ के बाद जिस रेशो में रिमेनिंग पार्टनर का शेयर इंक्रीज हो जाता है उसे आप क्या बोलोगे? गेनिंग रेशो. और वही गेनिंग रेशो में जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो पे करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का अमाउंट. Type of new profit sharing ratio, and the first is when nothing is stated about the new profit sharing ratio, and the second when old partner acquired retiring partner share in particular ratio. First of all, we will discuss when nothing is mentioned about the new profit sharing ratio. There is A, B, C and partner, and their profit sharing ratio is 3:2:1. You have to calculate the new profit sharing ratio. If A take a retirement, अगर A रिटायरमेंट लेगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी? 2:1. अगर B रिटायरमेंट लेगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:1. If C take a retirement, then profit sharing ratio is 3/2. Another illustration is XYZ. Okay, they are partner and their profit sharing ratio is 1/2, 1/3 and 1/6. You take a LCM and their ratio is 3:2:1. और अगर Y रिटायरमेंट लेगा तो सेम आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, अगर Y रिटायरमेंट ले लेगा तो आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी? 3:1. A, B, C are partner and their profit sharing ratio is 5:4:3. C retire and his share was taken up by A and B in the ratio of 3:2. फाइंड आउट द न्यू रेशियो. इट मीन्स सी का शेयर ए और बी ने किस रेशियो में लिया? 3:2 में.
और सी का शेयर कितना है 3/12। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट ए विल गेन। ए को कितना मिला है, ए कौन सी रेशो में ले रहा है 3/5, तो 3/5 ऑफ, एंड सी का शेयर कितना है 3/12, तो 3/5 वो किस शेयर का लेगा 3/12 का। इट मीन्स ए का कितना शेयर इंक्रीज हो जाएगा 9/60। इट मीन्स ए का ओल्ड शेयर कितना था 5/12 प्लस 9/16, उसका जो उसने एक्वायर्ड करा है सी से। तो ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा 13/60। एज इट इज़ यू हैव टू कैलकुलेट बी विल गेन। बी का किस रेशो में लिया उसने 2/5, तो 3/12 का आप कैलकुलेट करोगे 3/12 का 2/5, तो वो आएगा 6/60, ठीक है। और उसका ओल्ड शेयर कितना था 4/12, तो 4/12 प्लस 6/60, तो बी का नया शेयर कितना हो गया 26/60। तो न्यू रेशो विल बी 17/13। PQR our partner and their profit sharing ratio is 5:3:2. Our retire and his share is entirely taken up by P. It means R जब रिटायर हुआ है तो उसका जो शेयर है इट मीन्स 2/10 वो किसने ले लिया है P ने। यू हैव टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो शेयर टेकन बाय P फ्रॉम R कितना लेगा 2/10, 2/10 शेयर है R का और वो किसने ले लिया P ने। तो P का नया शेयर कितना हो जाएगा, P का पहले ओल्ड शेयर क्या है 5/10, तो 5/10 प्लस 2/10, ओके ये कितना हो जाएगा 7/10। और नेक्स्ट Q का शेयर कितना है 3/10, ये तो उसने। अब आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लोगे तो न्यू शेयर कितना आ जाएगा 7:3। Illustration 9. A, B, C are partner and their profit sharing ratio of 4:3:2. B retire. A and C decided to share the profit and losses in future in the ratio of 5:4. It means A और C B के रिटायरमेंट के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस रेशो में शेयर करेंगे, प्रॉफिट किस रेशो में शेयर करेंगे 5:4। इट मीन्स 5:4 आपको क्या है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज़ गिवन इन द क्वेश्चन। ये ओल्ड रेशो है, ये न्यू रेशो है। यू हैव टू कैलकुलेट गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ओके। जो न्यू रेशो भी गिवन है ओल्ड रेशो भी गिवन है, तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट गेनिंग रेशो। 5/9 न्यू रेशो है माइनस 4/9 आपको ओल्ड रेशो दे रखा है, तो ये आ जाएगा 1/9। एज इट इज सी का कैलकुलेट कर लोगे तो गेनिंग रेशो बिटवीन ए एंड सी 1:2। As it is, next illustration 10 has given A, B, C, D are partner and their profit sharing ratio is 1/3, 1/6, 1/3 and 1/6. C retire and A, B and D decide to share the profit and losses equally. It means 1:1:1. It means 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है। It means new ratio भी given है, old ratio भी given है, तो you can easily calculate the gaining ratio. New ratio minus old ratio. तो A की gaining ratio कैसे कैलकुलेट करोगे, न्यू रेशो क्या है 1/3 और यहाँ पे भी आपको ओल्ड रेशो क्या दे रखा है 1/3। इट मीन्स A कुछ भी गेन नहीं कर रहा है 0। B का गेनिंग रेशो 1/3 माइनस ओल्ड रेशो है 1/6, तो B का गेनिंग रेशो कितना आ रहा है 1/6 एंड D का 1/3 इसका न्यू रेशो है एंड 1/6 D का ओल्ड रेशो है, तो 1/6 आ जाएगा। क्लियर, तो ऐसे आप कैलकुलेट कर लोगे गेनिंग रेशो। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। The retiring partner is entitled to his share of goodwill at the time of retirement because the goodwill earned by the firm is a result of the efforts of all the existing partner in the past. It means goodwill is a compensation paid to an outgoing partner payable by the remaining partner in their gaining ratio. किसी भी पार्टनर के रिटायरमेंट पे जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाता है इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो इसके अगेंस्ट में जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको गुडविल देंगे और कौन सी रेशियो में देंगे गेनिंग रेशियो में।
As such, in case of retirement or death of a partner, the adjustment for goodwill will be made through partner's capital account, and the journal entry will be remaining partner's capital account debit to retiring partner. In which ratio? Gaining ratio. तो आप जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके अकाउंट को क्या करोगे? क्रेडिट, क्योंकि आप उसे गुडविल का शेयर दे रहे हो। और जो रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है विल भी क्या होंगे? डेबिट इन देयर गेनिंग रेशियो। Usually, the goodwill is not shown in the books of firm. However, if at the time of retirement or death of a partner it appear in the balance sheet of a firm, it will be written off by debiting all the partners' capital account in their old profit sharing ratio and crediting the goodwill account. मीन्स अगर बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर है तो इसे आप क्या बोलोगे? एग्जिस्टिंग गुडविल। इस गुडविल को आप राइट ऑफ करोगे एंड आप योर जर्नल एंट्री क्या होगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब हेयर इज ए बी सी, दे आर 3 पार्टनर और सी जो है रिटायरिंग पार्टनर है। तो ये जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है या इसे एग्जिस्टिंग गुडविल बोलते हैं, तो इस गुडविल को आप राइट ऑफ करोगे, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है, अब गुडविल आपकी क्या है? एसेट्स, तो डेबिट है, डेबिट साइड में लिख दो आप एसेट्स में। ठीक है, बट आप इसे राइट ऑफ करोगे तो आप क्या कर दोगे? उसको क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि आपको राइट ऑफ करना है। योर जर्नल एंट्री विल बी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स रिटन ऑफ। This is your journal entry, goodwill written off, A's capital account debit, B's capital account debit, C capital account debit to goodwill. In which ratio? Old ratio. Old ratio में आप goodwill को write off कर दोगे। How to calculate goodwill amount paid to retiring partner? To firm goodwill, ठीक है, वो किस बिहाफ पे आप रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करोगे? फर्म की गुडविल के। तो फॉर एग्जांपल सी जो है वो रिटायरिंग पार्टनर है, तो फर्म गुडविल मल्टीप्लाई सी प्रॉफिट शेयर, जो टोटल फर्म की गुडविल है उससे आप कैलकुलेट कर लोगे रिटायरिंग पार्टनर का शेयर। जब आप रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल अकाउंट पेड करोगे तो रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और जो रिमेनिंग पार्टनर हैं, इट मीन्स ए और बी, उन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को आप क्या करोगे? डेबिट। तो योर जर्नल एंट्री विल बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। एंड विच रेशियो? देयर गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो में आप डिवाइड करोगे। Journal entry is given. First of all, first entry goodwill written off की, okay, all the partners capital account debit to goodwill old ratio में, and goodwill amount paid to retiring partner, तो remaining partners capital account debit to retiring partner, in which ratio? Gaining ratio. Okay, here is illustration 17. A, B, C, they are partner and their profit sharing ratio is 3:2:1. Goodwill is appearing in the books at a value of 2,40,000. इट मीन्स ये जो गुडविल अपीयर्ड है बैलेंस शीट में ये आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल है, तो इस गुडविल को आप राइट ऑफ करोगे तो योर जर्नल एंट्री विल बी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, जब आप गुडविल को राइट ऑफ करोगे तो आप उसे क्रेडिट कर दोगे। बी रिटायर एंड ऑन द डे ऑफ बी रिटायरमेंट गुडविल इज़ वैल्यूड एट 6 लाख। जब बी रिटायरमेंट ले रहा है तो फर्म की गुडविल कितनी है? 6 लाख। अब 6 लाख फर्म की गुडविल है तो आप कैलकुलेट कर लोगे बी का शेयर। बी का शेयर आपका कितना है? 2/6। ओके, एंड ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। इट मीन्स दिस इज योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये ओल्ड रेशियो आपको दे रखा है, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। उस गेनिंग रेशियो में आप ये गुडविल का जो अमाउंट है वो रिटायरिंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी, क्योंकि गुडविल का अमाउंट आप उसी गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो दिस इज योर जर्नल एंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल आप गुडविल को राइट ऑफ करोगे, जो 2,40,000 है, दिस इज योर एग्जिस्टिंग गुडविल। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो इज 3:2:1। ओके, एंड द सेकेंड यू हैव टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। ठीक है, जब आपको यहाँ पे ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है, ठीक है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो न्यू रेशियो कितना है? 3/5 एंड ओल्ड रेशियो आपका कितना है? 3/6।
तो इतना इसका ए का गेन कितना आ रहा है 330। ऐसे ही आप सी का कैलकुलेट कर लोगे तो गेनिंग रेशियो कितना आ रहा है ए एंड सी का 3/7। इस 3/7 में आप ये जो 6 लाख है 6 लाख का बी का शेयर कितना है 2/6, तो वो कितना आपका आएगा 2 लाख। ओके 2 लाख आप कैलकुलेट कर लोगे। ये जो 2 लाख है गुडविल का अमाउंट, ये रिमेनिंग पार्टनर यानी ए और सी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस गेनिंग रेशियो में 3/7 में। ओके नेक्स्ट illustration given in your book, A, B, C are partner and their profit sharing ratio is 4:3:2. B decided to retire and surrender his share to A and C in the ratio of 3:1. It means B रिटायर हो रहा है और उसका जो शेयर है वो A और C किस रेशो में ले रहे हैं 3:1। ओके तो ये 3:1 आपका क्या हो जाएगा गेनिंग रेशो। द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 1.5 year परचेज ऑफ सुपर profit based on average profit of the last 3 years which were 2 lakh, 2,40,000 and 3,10,000 respectively. It means अब आपको ये क्या दे रखा है एवरेज प्रॉफिट, ठीक है 3 years का। तो आप एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। इट मीन्स 2 lakh, 2,40,000 प्लस 3,10,000 डिवाइडेड बाय 3, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। आफ्टर दैट द नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द सिमिलर फर्म आर 1,70,000। नॉर्मल प्रॉफिट आपको दे रखा है 1,70,000, तो आप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आफ्टर दैट यू हैव टू कैलकुलेट गुडविल, आप फर्म की टोटल गुडविल कैलकुलेट कर लोगे एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। अब यहाँ पे आगे दे रखा है गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है। इट मीन्स एग्जिस्टिंग गुडविल आपको दे रखी है जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में है 72,000। तो ये 72,000 गुडविल को आप राइट ऑफ करोगे तो योर जर्नल एंट्री विल बी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन देयर ओल्ड रेशियो। इट मीन्स 4:3:2 एंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ईयर आफ्टर बी रिटायरमेंट, बी के रिटायरमेंट के बाद उनका जो प्रॉफिट कितना है 5,40,000। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू एडजस्ट गुडविल। अब इसमें देखो ये फर्स्ट एंट्री आपकी गुडविल राइट ऑफ करने की 72,000 आपको जो दे रखी है गुडविल ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है एग्जिस्टिंग गुडविल है तो ये राइट ऑफ कर दोगे। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन देयर ओल्ड रेशियो 4:3:2। अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे, फर्म की टोटल गुडविल, अब ये आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, जो आपको लास्ट 3 years के प्रॉफिट दे रखे हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो वो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर तो 2,50,000। आफ्टर दैट आप क्या कैलकुलेट करोगे सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है 2,50,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट आपको गिवन है 1,70,000, ये आपको दे रखा है 1,70,000। दिस इज़ योर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज में से जब आप नॉर्मल डिडक्ट करोगे तो रिमेनिंग अमाउंट आपका क्या आ जाएगा 80,000 सुपर प्रॉफिट। देन यू हैव टू कैलकुलेट गुडविल, तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको कितना दे रखा है 1.5 ईयर, ओके तो 80,000 इंटू 1.5 ये आपका आ जाएगा 1,20,000। ये टोटल फर्म की गुडविल है। अब टोटल फर्म की गुडविल है तो आप इसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालोगे। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है आपका, बी रिटायर हो रहा है तो ये आप निकालोगे, ठीक है 3/9। क्लियर। नेक्स्ट है अब ये जो गुडविल है, ठीक है अभी आपने गुडविल कैलकुलेट करी है। टोटल जो आपकी गुडविल थी यहाँ पे दे रखा है वर्किंग नोट, जो टोटल फर्म की गुडविल है वो कितनी आई है 1,20,000। अब उसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है 3/9। इट मीन्स 3/9 1,20,000 का आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 40,000। अब ये 40,000 आप रिटायरिंग पार्टनर को दोगे तो उसके अकाउंट क्या होगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और रिमेनिंग पार्टनर्स ए और सी, ठीक है उसे किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो ऑलरेडी आपको गिवन है 3:1, तो 40,000 को आप 3:1 इट मीन्स 30,000 ए देगा एंड सी कितना देगा 10,000। तो दिस इज योर जर्नल एंट्री, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी, ठीक है गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो। क्लियर। द नेक्स्ट है अब आपको यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा था, हियर इज गिवन प्रॉफिट गिवन है आपको कि बी के रिटायरमेंट के बाद आपको कितना प्रॉफिट हुआ 540, ठीक है। अब 540 जो है वो अब उसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। तो बी का जो शेयर है वो किस में डिवाइड हुआ था, ए और सी में 3:1 की रेशियो में, ठीक है। अब
ए किस रेशो में ले रहा है 3/4, ठीक है, और बी का क्या शेयर था 3/9, तो 3/9 का 3/4 आप निकालोगे तो 9/36। ए को क्या हुआ है, गेन हुआ है, फ़ायदा हुआ है, तो ए का ओल्ड शेयर क्या था 4/9 प्लस 9/36, तो उसका शेयर कितना हो जाएगा 25/36। ऐसे आप सी का कैलकुलेट कर लोगे, वो आएगा 11/36। इट मीन्स आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ रहा है, न्यू रेशियो 25/11। ओके तो ये जो प्रॉफिट है 5,40,000 का, 5,40,000, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा रिमेनिंग पार्टनर में, इट मीन्स ए एंड सी में। तो योर जनरल एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट डेबिट 5,40,000 टू ए एंड टू सी, ठीक है, इन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन न्यू रेशियो, इट मीन्स 25/11। ओके, नाउ योर क्वेश्चन इज completed.